ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میرے شوہر کے انتقال سے تقریباً ہفتہ پہلے ہی چچا کی تیسری شادی ہوئی تھی اور اب میں بیوہ ہو کر اپنے گھر پہنچی تھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ہر صبح میری نئی نویلی چاچی کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی اور اس کی حالت بہت عجیب سی ہوتی۔ کئی دفعہ تو میں نے اپنی چاچی سے بری طرح لڑاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور کئی دفعہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور شرم سے منہ پھیر لیا کرتی۔ ان کے اس انداز پر مجھے بھی خفت محسوس ہوتی اور میں بھی مزید سوال جواب نہ کر پاتی۔ لیکن ایک دن جب میں نے صبح ہی صبح چچی کو باورچی خانے میں روتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے زبردستی ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم بھی تو شادی شدہ ہو، تم بھی اس دور سے گزر چکی ہو، تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر ہر رات کیا بیتتی ہے۔ جب شوہر اس عمر میں بھی 10 مردوں جتنی طاقت رکھتا ہو تو بیویوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ چچی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا میں تو نہیں تھا لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جسے چچی کا حلیہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر میں چچی سے نہ کھل کر بات ہی نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ البتہ میں یہ جان کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی کہ میرا 60 سالہ چچا ایسا کیا کر سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے چچی اس قدر پریشان رہتی ہیں۔ اس عمر میں تو انسان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی۔ چچا بھی دبلا پتلا سا آدمی تھے۔ اس دن کے بعد میں نے چچی سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ 10 دن تک میں خاموشی سے ان کی حالت دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے چچا کی طاقت پر حیران ہوتی رہی۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا لیکن میرا شوہر ہفتے میں 2 بار بھی میرے قریب آ جاتا تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ جبکہ میرا شوہر 26 سال کا ایک جوان مرد تھا لیکن چچا تو روز روز ہی چچی کو پریشان کرتا تھا۔ ہر صبح چچی بھیگے بال لے کر سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلتی اور بڑی مشکل سے گھر کے کام کاج نپٹاتی۔ میں اور اماں ہر روز ہی بے بسی سے چاچی کی تکلیف کو دیکھتے لیکن ہم دونوں ہی چاچی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ چچی جھوٹ بولتی ہیں، چچا اتنی عمر میں روز روز یہ سب کیسے کر سکتے تھے۔ اور پھر ایک رات جب مجھے نیند نہ آئی اور میں کمرے سے نکلی اپنے تو بلا ارادہ ہی میں چچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور جیسے ہی میں دروازے سے کان لگائے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ چچی غصے میں چچا سے کہہ رہی تھی کہ بوڑھے تو نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، کچھ تو شرم کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ تو کچھ ہی دنوں میں بات ہوگی لیکن تیرا دم ہم تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب میری بس ہو گئی ہے، میں اس سے مزید زیادہ برداشت نہیں کروں گی، چھوڑ دے مجھے۔ جبکہ چچا کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جو ساری زندگی ختم نہ ہوگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد چچی کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ شرم کے مارے میں واپس پلٹ گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چچی ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اس عمر میں بھی چچا میرا ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا۔ ان کے دن کے بعد میں نے چچی کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی کیونکہ میری میاں بیوی کا ذاتی معاملہ تھا۔ مگر مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک صبح میری ہٹی کٹی چاچی روتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کا بیگ بھی تھا۔ اس نے میری اماں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہنے لگی، بھابھی میں اب مزید اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اسے تو میری جان ہی نکال کے رکھتی ہے، میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ میری ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی سمجھانا چاہا مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسی لیے اپنا سامان لیے ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس اماں کے پاس لے کر پہنچی تو اماں کہنے لگی، تیرے چچا کسی عورت کو بھی ٹکنے نہیں دیتا، 60 سال کی عمر میں بھی یہ نہ جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ بیویاں چھوڑ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اب یہ بھی چلی گئی، پھر تیرا چچا اگلی شادی کے لیے گھر میں چھوڑ ڈالے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ یہ بات تو مجھے بھی پتا تھی کہ 2 دن بھی نہیں گزرے اور چچا پھر اماں کے سر پر سوار ہو جائے گا کہ کہیں سے بھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ اور میری شادی کروا دو۔ چچا کا بیوی کے بغیر گزارا نہیں تھا اور کوئی بھی بیوی چچا کے ساتھ زیادہ دن ٹکتی نہیں تھی۔ یہ میری والی چچی بہت ہی اچھی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی ماہر تھی اور چچا کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، لیکن بند دروازوں کے پیچھے کیا مسئلہ تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی چچا نے نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت رکھی تھی کہ وہ بیویوں کو پریشان کر کے رکھتے تھے۔ یہ لڑکی بھی اماں نے بڑی مشکل سے تلاش کی تھی، غریب گھرانے کی تھی، اسی لیے اس کے گھر والوں نے اسے 60 سالہ چچا کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن مہینے کے اندر ہی وہ بھی فرار ہو گئی اور اب بات وہیں کی وہیں آ کر رک گئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری پہلی چچی زندہ تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب چچی کا انتقال ہوا تب سے ہی چچا کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے میری پہلی چچی کو کس طرح جھیلتی تھی چچا کو، لیکن نہیں آنے والی چاچیوں نے تو کچھ ہی دنوں میں واپس جانا مناسب سمجھا تھا۔ اور جب میں بیوہ ہو کر لوٹی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر صبح
जवान चची का क्या हशर होता था। मैंने कई बार अम्मा को दिलासा दिया और कहा कि आप फिक्र ना करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात भी तो मैं जानती थी कि अम्मा भी इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा। वाकई ऐसा हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे कि चचा ने घर में शोर डाल दिया कि फरहीन चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मा ने सर पीटा और चचा से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी फरहीन अभी तुम्हारे निकाह में है, इसी को मनाकर वापस लेकर आओ। चचा हाथ जोड़कर कहने लगे कि वो बहुत ही नखरे वाली थी। हाथ लगाओ भी तो उसे नखरा आता था। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरे साथ निभा कर सके। इन लड़कियों को तो बहुत नखरे चढ़े हैं। चचा जी फरमाइश सुनकर मेरा और मेरी माँ का मुंह खुले का खुला रह गया था। माँ गुस्से में उठकर कमरे में चली गई थी और मैंने शर्म से मुंह नीचे कर लिया था। चचा तो 20-22 साल के लड़के की तरह फरमाइशी लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 60 साल के थे और सर के पूरे बाल भी सफेद हो चुके थे। अम्मा ने चचा की हर बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन चचा की जिद वहीं की वहीं थी। ना वो खाना खा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे। इन्हें बस शादी करनी थी। चचा ने खुद को दफ्तर और कमरे तक महदूद कर दिया था। अम्मा मुझसे गुस्से में कहने लगी कि इतने बुढ़ापे में भी इसके चोंचले खत्म नहीं होते। कितने ही लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वो भी अपनी मनपसंद। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा? मैं कहाँ से ऐसी लड़की तलाश करके लाऊं? अब तो गरीब घराने की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि ये बीवियों को किस कदर आजिज करता है। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी एक नंग तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है, अगर आप कहें तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है, बस इसीलिए उसका रिश्ता नहीं हो रहा। अम्मा ने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगी तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा चचा उससे भी महीने से ज्यादा टिकने नहीं देगा। ना वो जाने ऐसी ताकत की कौन सी ये दवाएं खाता है। सारे रिकॉर्ड जो तोड़ दिए हैं। तुम्हारे अब्बा को तो सारी रात ही नींद नहीं आती, कमर पकड़कर कभी इस चारपाई तो कभी इस कुर्सी पर। बीवी के लिए तो फुर्सत ही नहीं है। एक तुम्हारे चचा जिसने अपनी बीवियों को इस कदर परेशान कर रखा है। अम्मा अपने ही दिल में जले फफोले फोड़ने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी सास को फोन मिला दिया। मेरी नंद बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी चचा से की जाती तो फिर चचा को उसे छोड़ने की जरूरत ही पेश ना आती। वो किसी ना किसी तरह चचा को काबू में कर लेती। यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की। वो नंद से वैसे ही आजज बैठी हुई थी, क्योंकि उसने अपने घर में भी बड़ा फसाद बर्पा कर रखा था, इसीलिए फौरन राजी हो गई। जबकि मेरी नंद और चचा की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी ज्यादा कुछ खास नहीं थे। इसीलिए कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ कहने पर सादगी से मेरी नंद की शादी मेरे चचा से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर चली आई। लेकिन 15 दिन वो भी वही सब कुछ कहना शुरू कर चुकी थी जो पिछली वाली चची ने कहा था। वो भी चचा के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी और वापस जाने की बात करती थी। मैंने हैरत से अपनी तेज तरार नंद से पूछा कि आखिर तुम चचा के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि इस बूढ़े में बड़ी जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी ली थी कि इसमें दमखम नहीं होगा और मेरी सुकून से जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी भी लिहाजा सुकून से गुजरेगी। लेकिन यहाँ अगर पता चला कि ये बड़ा हट्टा कट्टा है और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सर हिलाया। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी क्योंकि ये हकीम लुकमान की हिकमत इस्तेमाल करता है, ये इसका नतीजा है। ये कहकर वो तो वापस अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि चचा कोई ऐसी चीज खाता है जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में अम्मा से ये बात बताई तो अम्मा कहने लगी पता तो कर चचा कौन सी हिकमत इस्तेमाल करता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली भी भाग जाए और फिर तेरा चचा अगली शादी की जिद लगा ले। मैंने कानों को हाथ लगाया और कहा अम्मा मैं तो इन मामलों से दूर ही ठीक हूँ, पहले ही बेवा होकर यहाँ आ बैठी हूँ। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी चचा नहीं उठाता है, फिर मैंने चचा के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हूँ क्या? मेरी बात सुनकर अम्मा हाँ में सर हिलाने लगी। दरअसल चचा मेरी दादी का मुंह बोला भाई का बेटा। मेरी बात सुनकर अम्मा ने तो हाँ में सर हिला दिया। दरअसल चचा मेरी दादी का मुंह बोला जो बेटा था। पैसे वाला था, किसी चीज की कमी नहीं थी, अलबत्ता इसके माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो मेरी दादी अपनी जिंदगी में ही इसे अपने घर हमारे ले आई थी। चचा का बड़ा बेटा बहुत सारा कारोबार था, जबकि मेरा इनका अपना अब्बा का काम चोर और निकम्मा था। चचा की कमाई से ही हमारा घर चलने लगा था, हमारे खर्चे पूरे होने लगे थे। चचा ने हर चीज अपने जिम्मे ले ली। फिर अम्मा ने ही चचा की शादी की एक सीधी सादी लड़की करवा दी और उस बात पर उसे कोई एतराज ना हुआ। चचा हमारे घर का खर्चा क्यों उठाता था, यहाँ तक कि मेरी शादी का सारा पैसा भी चचा ने ही दिया था। इसीलिए अम्मा चचा की हर बात को सर आंखों पर रखती थी। और फिर जब पहली चची का इंतकाल हुआ, चचा ने दूसरी शादी की बात की
तो अम्मा ने यही सोचकर चचा की शादी दूसरी करवा दी है गरीब शरीफ लड़की से, कि कहीं चचा हमसे बदजन ना हो जाए। चचा तन्हाई से तंग आकर कहीं घर छोड़ने का ही ना सोचने लगे, क्योंकि हमारा सब कुछ चचा के दम से ही था। इसीलिए अम्मा ने चचा को अपने काबू में रखने के लिए इनकी शादी करवानी शुरू कर दी। लेकिन पहली चची की हिम्मत थी जो चचा के आगे ठहर गई थी। इसके बाद तो कोई लड़की भी नहीं ठहरी थी। जो भी आती कुछ ही दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और चचा फिर नई शादी के लिए जिद करते। और अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों जा रही थी। मेरी नंद भी बमुश्किल 1 महीना ही टिकी और इसके बाद एक दिन खामोशी से वो अपना सामान बांध कर चचा से तलाक लेकर चली गई। इसके जाने के बाद चचा बहुत अफसरदा हो गए थे और रोते हुए कहने लगे चचा जैसे अफसरदा हुए और रोते हुए कहने लगे कि मेरी किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं लिखा, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तनहा नहीं गुजारना चाहता। चचा की हालत बहुत खराब हो गई थी। चची के जाने का इन्हें बहुत सदमा था। वो अम्मा से कहने लगे कि मैं आप कभी शादी ही नहीं करूंगा। ये सुनकर अम्मा को सुकून हो गया था, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि चचा ने फिर से वही बात की थी कि मेरे लिए लड़की तलाश करो। सारी सारी रात चचा घर में यहाँ से वहां चहलकदमी करते और सारा सारा दिन परेशान नजर आते। इन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। और फिर जब अम्मा ने चचा के लिए लड़की तलाश शुरू कर दी और एक रिश्ते वाली से बात की तो रिश्ते वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगी तुम्हारा देवर कौन सा, तुम्हारा सगा देवर है। मुंह बोला देवर है तो अपनी बेविया बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती। घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बच्ची भी फंस जाएगी। रिश्ते वाले की बात सुनकर अम्मा उछल पड़ी और कहने लगी ये तुम किस तरह की बात कर रही हो। मेरी बच्ची सिर्फ 22 साल की है और उसका चचा 60 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नजरों से अम्मा की तरफ देखा और कहने लगी कि तुम इतनी ही उम्र की लड़कियां अपने देवर के लिए ढूंढ कर लाई हो, फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है। तुम्हारी बेटी की तो रंगत भी बिल्कुल स्याह है। पहली शादी ही इसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि तुम अब इसका मुस्तकबिल संवार दो। रिश्ते वाली की तो 2 टोक बात अम्मा को सुनाकर चली गई थी, लेकिन अम्मा सोच में पड़ गई थी। और जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा अम्मा कैसी बातें करती हो, मैं कैसे अपने ही चचा से शादी कर सकती हूँ। अम्मा कहने लगी कौन सा तेरा सगा चचा है, फिर पैसे वाला भी बहुत है। अम्मा भी मेरे कम उम्र में बेवा होने को लेकर बहुत परेशान थी और फिर मेरी कुछ शक्ल सूरत और कद काट भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना भी बहुत ही मुश्किल था। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पिछले काफी अरसे से मैं खुद भी तन्हाई से तंग आ रही थी। एक औरत जब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तन्हा होती है तो उसके लिए अकेले रहना आसान नहीं होता। उसकी नफ्सानी ख्वाहिशात उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने चचा के कमरे से चची की आवाजें सुनी थी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी में भी फिर कोई शख्स शामिल हो जाए। इसीलिए बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने चचा से शादी की हामी भर ली। और जब ये बात चचा को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मा ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। 2-4 पड़ोसियों को ये बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सभी जानते थे कि चचा मेरे मुंह बोले चचा हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब था। मैंने जिसे सारी जिंदगी चचा कहा था, मैं उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में पहुंच गई थी और फिर उसके बाद मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि न जाने चचा में कितनी ताकत होगी, वो शादी की रात क्या करेंगे, मैं किस तरह इन्हें बर्दाश्त करूंगी। कुछ देर बाद चचा कमरे में आए और अलमारी में से एक थैली निकाल कर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठी और चचा के पास गई। मैंने अब पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो वो कहने लगे कि ये भुने हुए काले चने मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। चचा की बात सुनते ही मेरे जहन में चची की बात आई। वो लुकमानी हिकमत इस्तेमाल करते हैं। मैंने फौरन चचा से वो चनों की थैली छीन ली और कहा कि आप ये खाने बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। चचा नाराज हुए, वो थैली मेरे हाथ से ले ली और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की जरूरत है। फिर चचा ने चनों में थोड़ी सी मिश्री मिलाई और इन्हें पीस कर दूध के गिलास के साथ डालकर पी लिया और फिर मेरे देखते ही देखते वो दूध का गिलास खत्म। मेरे सारे वजूद से पसीने छूटने लगे। लग रहा था कि अब मैं बाकी चचियों की तरह चचा के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चचा ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ कोई और जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही कोई रिश्ता कायम किया था, बल्कि मेरी थकन का एहसास करके मुझे सोने दिया था। कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद सो गई और अगली सुबह बड़ी खुशगवार हुई थी। चचा ने मुझे एक बड़ी रकम दी थी और कह रहे थे कि ये तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं भी तो परेशानी ना हो। ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा कि आपका साथ मेरे साथ है, फिर मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर चचा के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए और फिर 2-4 दिन और गुजरे, लेकिन मैंने चचा के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत नहीं पाई। तो वो बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, ठंडे मिजाज के थे, मेरी छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान इज़्दवाजी ताल्लुक कायम हो चुका था, लेकिन इसे भी चचा ने कोई जोर जबरदस्ती से ज्यादती नहीं की थी, बल्कि मोहब्बत के अंसर को नुमाया रखा था।
हर बात में वो मेरी मर्जी, मेरी खुशी पूछते थे। मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाज़त तलब करते। तो मैं बिल्कुल हैरान थी। जो सोचकर मैंने शादी की थी, चचा वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। न जाने क्यों मेरी चचियाँ इन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने यही बात चचा से पूछ ली। फिर चचा ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चचा कहने लगे कि मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी चच्ची के साथ गुज़ारी। तुम्हारी चच्ची मेरी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखती थी, इसीलिए मेरे लिए तन्हा रहना मुश्किल था और मैं शादी की बात करता था। लेकिन जो भी लड़की शादी होकर आती थी, उसकी नज़र अगले ही दिन मेरे पैसों पर जम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए हैं, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी की सुबह ऐसे ही पैसे दिए, ताकि वो मेरे साथ खुद को गैर महफूज तस्वुर ना करें। ये ना सोचे कि मैं इतने बुढ़ापे में गुजर गया तो इनका क्या होगा। लेकिन पैसा देखकर उनकी नीयत बदल गई और उन्होंने कुछ ही दिनों बाद मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिब समझा। वो मुझे इस कदर परेशान कर देती कि मैं इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद ही किसी बहाने से मुझे छोड़कर जाती और मैं भी इन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि ऐसी औरत को मैं दोबारा अपने साथ क्यों बसाता जो पहले ही मेरे पैसे की खातिर मुझसे जुड़ी थी। मैं यही सोचकर शादियां करता चला गया कि एक ना एक दिन मुझे कोई अच्छी और नेक बीवी मिल जाएगी, जिसे मेरी दौलत से नहीं बल्कि मुझसे सरोकार होगा, जो मेरी बीवी बनकर मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई ये सोचकर मेरी बीवी बनती कि मैं 60 साल का बुढ़ा हूँ, जल्द ही मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं हट्टा कट्टा हूँ, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तलाक ले लेती। और फिर जब मेरी जिंदगी में तुम आई, तो तुमने बिल्कुल अपनी पहली चची की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की हवस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी की पहली सुबह पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने वो पैसे लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं समझ गया कि अब मेरी आने वाली जिंदगी सुकून में गुजरेगी। तुम भले ही उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखकर ये बात साबित कर दी है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मायने नहीं रखती। चचा की बातों पर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। फिर मैंने चचा से पूछा कि वो चने और मिश्रियों को मिला के क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि ये बात बड़ा ताकतवर नुस्खा है। उसने इससे न सिर्फ मेरी आंखें बल्कि दिल मजबूत होता है, मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं ये हिकमत अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरी आंखें बड़ी कमजोर हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें खराब ना हो, बस इसीलिए रोजाना ये टोटका इस्तेमाल करता हूँ। चचा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वाकई चचा बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सब ने उनकी अच्छाई का फायदा ही उठाया था। अब मैं जान गई थी कि इस घर में जितनी भी औरतें तलाक लेकर भागी थी, वो सब चचा का बहुत सारा पैसा लूट कर गई थी। और मेरी माँ ने भी तो चचा के पैसों की खातिर ही घर में रखा हुआ था। अगर चचा के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ चचा को अपने घर में रखती? वो तो ये कहकर उसे बाहर कर देती कि तुम तो मुंह बोले बेटे थे, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम। मुझे समझ आ गया था कि ये दुनिया पैसे के पीछे भागती है और जब पैसा हासिल हो जाता है तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे चचा ने शौहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी है, मैं इन्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती ऐसा। आज मैं अपने 60 साला शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और बिल्कुल खुश और मुतमईन हूँ। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी पहले वाली चाचियां लालच ना करती तो शायद वो भी आज अच्छी जिंदगी गुजार रही होती, मगर उन्होंने तो लालच में ना सिर्फ अपने घर बर्बाद किए बल्कि चचा को भी बदनाम किया और हमारे दिल में भी चचा के खिलाफ अजीबोगरीब बातें डाल दी। जबकि चचा एक बहुत ही अच्छे इंसान निकले और हैं भी।